Hi everyone, good afternoon. Can you guys confirm if you are able to hear me? Is the audio okay? Alright, so welcome everyone to the first lecture on quadratic equations. So far in Algebra, in the Backbenchers batch, we've seen surds, indices and linear equations. Some parts of linear equations that we still have to do, but we will do that along with coordinate geometry. It'll make more sense then. Let's start with coordinate geometry, quadratic equations. In quadratic equations, we are going to see standard form of equation. We will look at how to use root formula, what would be the use of discriminant. Along with that, we will look at sum and product of the roots, and we will also look at some good problems as well, right? Can you guys send a yes or a no in the chat? All right. Okay. Hi Prachi. Good afternoon. Chalo, let's start. My name is Amit Surana. I am an educator here at Unacademy with over 7 years of experience, and I have trained more than 2.5 lakh students so far. Chalo, karenge start. Hi Natasha. Good afternoon. Okay, so what we are going to do here under quadratic equations is first start with the standard format, the general form, right? We've spoken that any polynomial equation is of the form ax power n plus bx power n minus 1 plus cx power n minus 2 all the way till whatever is the last term equal to 0. This is the standard form of any equation, right? So if it's quadratic equation, that means the degree has to be 2. So it will be the standard form ax square plus bx plus c equal to 0, right? This is the standard form. We call a as the coefficient of x square. Yes, and this a can never be equal to 0, right? If this a is equal to 0, then ax square entire thing will become 0, so then we will be left with just a linear equation, right? So a can never be equal to 0, right? B is the coefficient of x and c is the constant. Yes. Hi Samarth, good afternoon. Hello Prince, hello Prachi. Welcome everyone. Chalo. So this is the standard format of any given quadratic equation. Okay, now we'll start off with some example questions. Here's the first one. They're asking which one of the following is not a quadratic equation. Which one of these is not a quadratic equation? Go ahead, look at all the 4 answer choices carefully and then tell me which one is not a quadratic equation. Yes, n has to be equal to 2. Highest power of x must be equal to 2. Cannot be less, cannot be more. Let's see if you all can quickly try this. Answers, guys. Which one is not a quadratic equation? Okay, Sashwat says B. All right. Nandini says D. Okay. Aman says D. Okay. Anyone else? Prachi says D. Shreyashi says C. Okay. Chalo. So let's start looking at each one of them. Okay. First we'll look at A.
We'll check if A is a quadratic equation or not. Is it a quadratic equation? Yes, it is. X square minus 3x plus 1 equal to 0. It is a quadratic equation. What are the properties? N should be equal to 2. That is, the highest power of x must be 2. And A should not be equal to 0, right? Okay, let's look at the second one now. First one is a quadratic equation, so we can eliminate it because the question is asking which one is not. Yeah, let's look at the second one. What happens here? X minus 3 into 2x plus 1. Let's multiply this. Yes, 2x square plus x minus 6x, which is minus 5x, and here you will have minus 3. This should be equal to what? X square plus 5x. So if I take everything to the left hand side, what would we have? 2x square minus x square is x square, minus 5x is minus 10x, minus 3 equal to 0. So this is also a quadratic equation. Yes or no, guys? Option B, the second equation, is also a quadratic one, so that can't be our answer. Let's look at option C now. Option C has x cube minus 4x square minus x plus 1. On the other side we have x minus 2 the whole cube, right? X minus 2 the whole cube. What would we have to do here? We'd have to open up x minus 2 the whole cube, right? So if I open up x minus 2 the whole cube, what would I get? First x cube, then we would have plus 8 at the end. In between we will have what? Minus 3 times x square into 2, which is 6x square, plus 4 times 3, which is 12x. Make sense? This has to be minus 8, minus 2 the whole cube. So now what happens? People who were thinking that this is a cubic equation, it's not. Plus x cube minus x cube gets cancelled. Minus 4x square plus 6x square is 2 times x square, minus x minus 12x is minus 13x, plus 1 plus 8 is plus 9 equal to 0. This is also a quadratic equation. Am I right, guys? हाँ या ना? So जिन्होंने भी option C बोला था, people who said option C is not a quadratic equation, it actually is a quadratic equation. Yes, so C also gets eliminated. Now let's try the last answer choice. If now first 3 are not the answer, then the last one has to be, but let's open this up and check. Okay, x plus 2 the whole cube is going to be x cube plus 6x square plus 12x plus 8. On the other side we would have 2x into x square, which is 2 times x cube minus 2x. We take everything to the left hand side. What happens? X cube minus 2x cube is minus x cube plus 6x square plus 12x plus 2x is plus 14x plus 8 equal to 0. Is this a quadratic equation, guys? क्या ये quadratic equation है? Yes or no? No. Why? Because here the degree, the highest power of x is what? 3, not 2. It has to be 3, right? So our answer has to be what? Option D, because the last one is a cubic equation, not a quadratic one. तो जिन्होंने भी D बोला था बहुत बढ़िया. People who said D, superb work. People who said C, don't jump to conclusions that soon. पूरा सॉल्व करके चेक करके फिर बोलो, ठीक है? Unless and until you are very sure of something, don't say that that's the answer, ठीक है? Understood, guys? Chalo, beautiful. Now, so we've understood that property of a quadratic equation has to be what? Degree has to be 2. A cannot be 0. Yes? Chalo, that being done, let's move on to finding out the roots. What do you mean by roots, guys? Roots or solutions or zeros
all mean the same. What do they mean? Value of x that satisfy the equation, right? Value of x that satisfy the equation. This has to be roots. Now, there are multiple ways of doing it, multiple ways of finding out the roots. First method is using your quadratic formula. Yes, first one is finding out quadratic formula. Second is factorizing. Yes, you factorize the given terms and find out manually. Third would be to go for reverse engineering if that one helps out, है ना? अगर आंसर चॉइस दिए हैं तो रिवर्स engineering करके चेक कर लो. Or what you can do is you can also use sum and product of the roots. Yes, so we are going to start with the first one, quadratic formula. What is the quadratic formula? Can anyone tell me what is the quadratic formula, guys? किसको याद है quadratic formula? तो x के वैल्यूज यहां पे नंबर ऑफ रूट्स, ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ रूट्स हैज टू बी इक्वल टू द डिग्री. मतलब क्या? इन दिस केस, अपने केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होने चाहिए? 2 रूट्स होने चाहिए. Exactly 2 roots. Yes, they could be equal, they could be distinct, they could be real or imaginary, that doesn't matter, but 2 roots होने चाहिए. There should be 2 possible values for x in this particular case, है ना? तो root formula क्या है अपना? Here we denote roots. अपना जो roots है, 2 roots है, we denote it as alpha and beta, right? इनको अपन alpha और beta से denote करते हैं. Alpha is given as minus b plus under root b square minus 4ac by 2a, and beta, which is the other root, will be minus b minus under root b square minus 4ac by 2a, right? So if I combine them, possible values of x's would be what? Minus b plus or minus b square minus 4ac का under root by 2a, है ना? This is something that we all know. At least almost all of us know. सबको almost पता है इसके बारे में, है ना guys? Yeah, so we'll start using this. ये जो part है, this part, under the root, whatever you put under the root, that's called what? Discriminant. Right? Under the root जो value है b square minus 4ac, that part is called your discriminant. Yes, and discriminant is going to help you identify the kind of roots that you will get. It's called discriminant because it differentiates between the types of roots. Alpha और beta के बारे में हमें बताएगा, right? तो discriminant, which is b square minus 4ac, will give us an idea if d, right? अगर d greater than equal to 0 है, then it has to be real. रूट्स जो है आपके रियल रूट्स होंगे. और इफ d इज लेस देन 0, मतलब अगर d का वैल्यू 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देन इट वुड बी इमेजिनरी रूट्स. मतलब क्या कि नो रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x आप कुछ भी डाल दो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ इमेजिनरी रूट्स रहेंगे इसमें, राइट? क्यों? क्योंकि अगर d नेगेटिव हो गया, इफ d इज लेस देन 0, d नेगेटिव हो गया, तो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डी जो है, दिस पार्ट विल हैव व्हाट? नेगेटिव वैल्यू. ये नेगेटिव हो जाएगा. तो हमें पता है कि माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू, इफ यू हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, देन इट हैज टू बी इमेजिनरी, राइट? यस. सो नाउ इफ d इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, अगर d इक्वल टू 0 नहीं है, d इज पॉजिटिव फॉर श्योर, देन यू विल हैव 2 रियल सॉल्यूशंस. मतलब क्या? अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे. अल्फा एंड बीटा विल नॉट बी इक्वल, राइट? दे कुड बी कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. यस, कॉन्जुगेट्स रहेंगे बट इक्वल नहीं रहेंगे. सेकेंड केस इज इफ यू हैव d इक्वल टू 0. यस, यहाँ पे जो ये टर्म लिखा है मैंने, वन रियल सोल्यूशन, इज एक्चुअली इनकरेक्ट. इट्स नॉट मैथमेटिकली राइट. यस, व्हाट डू वी से हियर? वी से दैट द रूट्स आर इक्वल, इक्वल रियल रूट्स, है ना?
मतलब रूट्स फिर भी 2 है, रूट्स आर स्टिल 2 ओनली, बट देन दे विल बी इक्वल वंस। मतलब क्या, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा। यस, एंड अगर d 0 हो गया गाइस, अगर अंडर द रूट 0 है, मतलब ये पूरा चला गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/2 है कि नहीं गाइस? जल्दी से हाँ बोलो इफ यू एग्री विद दिस पार्ट। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/2 है, क्योंकि d डजेंट मैटर एनी मोर एट ऑल, है ना। d 0 हो गया तो उसको तो रूट से निकाल लिया, बस खत्म। यस, एंड फाइनली इफ वी हैव d लेस देन 0, अगर d आपका नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब अल्फा एंड बीटा विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। यस, अल्फा और बीटा आपके रियल नंबर्स नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, वो हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस ib, है ना, a प्लस ib, जहां पे i का वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। So we'll do some example questions to understand if we've gotten this right, है ना, हमें ये बराबर समझ में आया कि नहीं। So let's try the first question. There are only 3 answer choices. मैं D लगा दूँ, none of the above या cannot be determined, but उसका कोई मतलब नहीं है। So we're just getting comfortable with our quadratic formula or discriminant. So quickly try this. Hi Narsimha. नरसिम्हा, ये मैंने ब्लॉक नहीं करा है, आई हैवंट ब्लॉक्ड इट नरसिम्हा, दे हैव ब्लॉक्ड इट फ्रॉम देयर साइड, चैनल के साइड से ब्लॉक किया हुआ है, तो आई कांट अनब्लॉक इट। आई विल सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग, आई हाईली डाउट। चलो ठीक है, आई ट्राई चेकिंग, अगर मेरे साइड से मैं अनब्लॉक कर सकता हूं तो। चलिए जल्दी से बताओ गाइस, व्हाट टाइप ऑफ रूट्स वुड 6x² + 7x - 3 = 0 हैव? साहिल से C, इमेजिनरी रूट्स, अदर्स? तो क्या है रूल यहाँ पे, D if it is greater than 0 then 2 real roots, if d is equal to 0 then 1 real root, if d is less than 0 then 2 imaginary roots, है ना। okay, Sahil and Prince are saying C, Aman is saying A, Krishna, Neha is saying A, Shirley, Neha has changed her answer. चलो ठीक है, शाश्वत says imaginary, शिवानी says A. Let's quickly check this. तो D का वैल्यू क्या है, what is D? b² - 4 times AC. Yes, तो यहाँ पे B क्या है guys, what is B? This part, this is B. So 7² - 4 times A क्या है, 6. अभी C क्या है इसमें guys, in this equation what is C? A अपना 6 है, B is 7, what is C? Anyone? C is not +3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, प्लीज फोकस ऑन दिस, नेगेटिव साइन है, so C has to be -3 not +3. yes, so if I put -3 here, क्या हो जाएगा, 49 minus 6 3 times is 18 4 times is 72, but -72, so minus of -72 will become +72. Understood? Which is how much, 121. Is this equal to 0, greater than 0 or less than 0? क्या है ये, greater than 0, equal to 0 या less than 0? Greater than 0, right? It is greater than 0, मतलब if d is greater than 0 there has to be 2 real roots, option A. C is definitely a trap. If you did 49 - 72, अगर आपने 49 - 72 किया है then you know you made a mistake, ठीक है ना।
डन क्या गाइस? सॉर्टेड है ना? चलो ब्यूटीफुल। तो जिन्होंने भी सी बोला या क्या बोलते हैं बी बोला, बी किसी ने नहीं बोला था, ए और सी आए थे आंसर, सी बोला। एक बार थोड़ा सा केयरफुल रहो, साइंस को लेके प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहो, ठीक है? ट्राई दिस क्वेश्चन। दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी इसमें इस इक्वेशन में पी है एक जगह पे, राइट? दे हैव अ पी इन वन ऑफ द प्लेसेस. दिस हैज टू बी एक्स स्क्वायर, सॉरी, this has to be x square, huh? So I'll rewrite the equation x square plus px plus 36 equal to 0. This is the equation. चलो ट्राई करिएगा जल्दी से। इसके जो रूट्स है वो रियल होने चाहिए, the roots should be real. Yes, that's the only condition given. जल्दी से कोशिश करो। Okay, Shivani says B 12. All right. Aman is also saying 12. बहुत बढ़िया, beautiful. Nagma is saying 12 as well. Superb. Krishna is saying 12 too. बहुत बढ़िया, very good. So what do we get here? Prince and Neha are also saying B. तो हमें roots real चाहिए, मतलब क्या? D has to be greater than 0. Is this true or false guys? D has to be greater than 0. ये true है या false है? जल्दी से बता। D has to be greater than 0. Is it true or false? Quick, quick, quick. Okay, Nagma is saying true, Shruti is saying false. Yes, it is false. Why? D has to be greater than and equal to 0. D need not always be greater than 0. D has to be greater than and equal to 0. Why? Because they are only talking about real roots. If are they unique or are they distinct, are they same or different, that's not given, not known, है ना? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अपन को। तो D could be greater than 0 also, D could be equal to 0 also, so we'll consider D to be greater than equal to 0, है ना? तो D क्या है? B square minus 4 times AC should be greater than equal to 0, और B square must be greater than equal to 4 times AC, है ना? B square क्या अपना? P square. What is B square? P square has to be greater than equal to 4 times A, which is 1. What is C? 36. Yes, so this is what happens to this? 4 into 36, which is 2 into 6, 12. So P square has to be greater than equal to 12 square. P square has to be greater than equal to 12 square. Does this make sense, everyone? Yes. Now the fact that यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या गलती कर दी? A lot of you made a very common mistake. Yes. यहाँ पे बहुत लोगों ने common mistake कर दी कि B has to be equal to 12, not necessary. Right? यहाँ पे I intentionally gave this question ताकि आप वो mistake करें. P square has to be greater than equal to 12 square. That means P could be greater than equal to 12. P का जो वैल्यू है that could be greater than equal to 12, और P का जो वैल्यू है that could be greater than equal to less than equal to minus 12. Please understand this guys. ये गलती बहुत कॉमन है. This is a very common mistake when, especially when we have such kind of inequalities. ऐसे जब inequality होते हैं तब बहुत कॉमन सा मिस्टेक है ये. P ग्रेटर देन 12 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो सकता है, या P का वैल्यू -12 से कम हो सकता है. मतलब क्या? P could be 12
P could be 13, P could be 14 and so on. ठीक है, P could also be equal to minus 12, P could also be equal to minus 13, P could also be equal to minus 14 and so on. Are you guys able to follow this? एक बार सब हाँ बोल लो. These are the possible values of P. Yes, ये सारे जो हैं possible values of P है. मतलब यहां पे 6 को छोड़ के बाकी तीनों आंसर्स हो सकते हैं. B करेक्ट है, C भी करेक्ट है, D भी करेक्ट है. इज दैट क्लियर एवरीवन? या तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता, व्हाट कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ P? यस, क्वेश्चन शुड हैव बीन लाइक दिस. एक्चुअली वो वैसे था, मैंने नॉट हटा दिया. व्हाट इज नॉट द वैल्यू ऑफ P? तो P क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता. बाकी 12, 13, माइनस 12 हो सकता है. क्लियर? यस, ऐसे नहीं आएंगे कैट में क्वेश्चंस जहां पे मल्टीपल आंसर्स राइट हो. दिस इज ओनली टू सेट अ ट्रैप फॉर यू गाइस. ऑलराइट, तो जिन्होंने B बोला वो भी सही है, जिन्होंने C बोला वो भी सही है, जिन्होंने D बोला वो भी सही है. बट C या D किसी ने बोला नहीं, सब B पे अटक गए. क्लियर? डन. शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट वन? चलेंगे अगला. चलो, ओके, बिफोर वी मूव ऑन गाइस, आज टुडे वी आर डूइंग 2 स्पेशल क्लासेस, बैक टू बैक स्पेशल क्लासेस है. एक 6 बजे को है और एक इमीडिएटली आफ्टर दैट 7 o'clock है. 6 to 7, 7 to 8 है ना. तो आई विल बी शेयरिंग 6 o'clock वाला लिंक इन टेलीग्राम. The 7 o'clock link I will share it in the 6 PM wala special class. Yes, we are going to do some interesting questions on mixtures and alligations, one of the important concepts of quantitative aptitude, especially in CAT. पुराने पेपर्स अगर आप लेके देखोगे तो you will find so many questions from mixtures and alligations asked. Yeah, and most of them are a little difficult to understand. तो आज अपन advanced level करेंगे. I'll share the link on Telegram and the other link in the 6 PM class. Okay, don't forget to join this. Okay, चलो next question. Now what we are doing is we are going for the solution part, solve करने वाला part. ये solve करो. Yes, traditionally इसको अपन quadratic equation से solve करेंगे. माइनस b प्लस और माइनस रूट डी बाई 2a क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. बट इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ट्राई फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है. यू कैन ट्राई रिवर्स इंजीनियरिंग इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट. यू कैन ऑल्सो ट्राई सम एंड प्रोडक्ट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस. अगर ये आपको आते हैं, मेथड 2, 3, 4 अगर आपको आते हैं तो करो, नहीं तो 1 स्टिक टू मेथड 1, ट्राई दिस आउट. ओके, जल्दी से कोशिश करो. सर ये बैच कब तक चलेगा? जब तक है जान समर्थ, जब तक जान है तब तक करेंगे ये वाला बैच. बैक बेंचर्स, अपन ट्रू बैक बेंचर्स है. बैक बेंचर्स आखिरी दिन तक प्रिपेयर ही करते हैं. ठीक है, बैक बेंचर्स आखिरी दिन तक प्रिपेयर ही करते, तो करेंगे. हाय गीता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है गीता. यू विल गेट फुल एक्सेस. आप 2 months का लो, 3 months का लो, 1 year का लो, 6 months का लो, 18 months का लो, 24 months का लो, यू विल गेट फुल एक्सेस. है ना? 2 महीने का अगर आप ले रहे हो, 2 months, इट कॉस्ट 7,000. फिर आप मेरा कोड यूज करोगे सुराना लाइव, इट विल बिकम 6,300. 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. 2 months तक आपको पूरा ऐप पे जो कुछ भी है सब कुछ पे आपको एक्सेस मिलेगा. ठीक है? हाँ, बिना पॉइंट के मैं बात ही नहीं करता समर्थ. पॉइंट तो डेफिनेटली है, बिना बात के मैं बात ही नहीं, बिना पॉइंट के मैं बात ही नहीं करता. नेहा एंड प्रिंस आर सेइंग डी. ऑल राइट, नेहा एंड प्रिंस आर सेइंग डी. Prachi is saying A. How about others?
Narshima is saying D. Mayur and Nagma are saying D. Very good. चलो तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस, है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इस फॉर्म में लेके आना इसे, है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई कर लो. इफ आई मल्टीप्लाई x, दिस बिकम्स 10 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x. ये जो प्लस 2 टू द अदर साइड है, ब्रिंग इट टू लेफ्ट हैंड साइड. So this is your equation now, right? इस equation में आपका a का वैल्यू क्या है? a is 10. What is b? b is -1 and what is c? c is -2. Please be careful about this, ठीक है. ये जो साइन है, साइन को लेके बहुत लोग मिस्टेक कर लेते हैं and then they get weird आंसर्स. आपको जो ये उटपटांग वियर्ड से आंसर्स आते हैं, it's probably because you took the wrong values for b and c. यहाँ पे -1 and -2 है, ठीक है. So now we'll put up the value, the formula, which is what? Alpha or beta will be equal to minus b plus or minus under root b square minus 4 times ac upon 2a. Yes, b square. Minus b, minus of -1 plus or minus under root. -1 the whole square is +1 minus 4 times a क्या है 10, c क्या है -2. yes, upon what? 2 times a, which is 2 times 10, 20. So you're getting 1 plus or minus under root 1 minus of minus plus हो गया, ये कितना 80 plus 1 81 divided by 20. So what would be alpha का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Alpha will be equal to 1 plus under root 81 which is 9 by 20 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 minus 9 by 20, है ना. So alpha का वैल्यू 10 by 20 plus 0.5, बीटा का वैल्यू -8 by 20 which is -0.4. These are the values of your roots, plus 0.5 minus 0.4, जो कि कहां पे है +0.5 minus 0.4, ऑप्शन डी. ओके, सो पीपल हु सेड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया. श्रेयसी, नशिमा, मयूर, नगमा, शर्ली, साहिल, नेहा, प्रिंस, ब्यूटिफुल. अदर्स हु डिड नॉट गेट ऑप्शन डी, जिन्होंने सी या ए बोला, एक बार चेक कर लो, ठीक है. Is there an alternative way of looking at it? Definitely है ना. इसमें alternative तरीका भी है करने का. Yes, factorization अभी नहीं बात करेंगे, factorization and product and sum अभी नहीं बात करेंगे, but let's talk about reverse engineering. Yes, अपने पास क्या क्या आंसर चॉइसेस है? We have 0.5, we have -0.5, we have 0.4 and we have -0.4, है ना. इनमें से अगर आप कोई भी दो वैल्यू यहां पे प्लग इन करोगे, इफ यू प्लग इन एनी 2 वैल्यूज, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज व्हाट. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ प्लगिंग इन 0.5. 0.5 कितना 1/2, है ना. 1/2 प्लग करोगे क्या हो जाएगा? 10 into 1/2 is 5. 5 minus 1 should be equal to 2 into 1/2 का रेसिप्रोकल, 2 into 2 4. Does it satisfy? Yes, it satisfy, है ना. 0.5 सेटिस्फाई करता है. सो जहां कहीं पर भी -0.5 है, एलिमिनेट कर लो. wherever you have -0.5, eliminate that. What's the other thing left? 0.4 minus 0.4. इनमें से कोई एक वैल्यू प्लग इन कर लो. लेट्स से मैं 0.4 प्लग इन कर रहा है. Yes, if I plug in 0.4, which is what? 2/5, है ना. 0.4 कितना? 2/5. So what do we get? 2/5 into 10 into 2/5, which is 4 minus 1, should be equal to 2, right? So 5 यहां पे चला जाएगा. 2 into 3 is 6, 5 into 2 is 10. Is it equal, guys? 6 और 10 equal है? Definitely not. That means 0.4 is out of the question. There was one answer choice with plus 0.4, वो चला गया. Only thing left is option D. That is our right answer. Finish, है ना.
रिवर्स इंजीनियरिंग कभी भी अपने पास रखो गाइस, प्लीज रिमेंबर एल्जेब्रा में, स्पेसिफिकली इन एल्जेब्रा रिवर्स इंजीनियरिंग विल कम इन हैंडी। यस, ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा, योर टाइम विल रिड्यूस एंड ऑल्सो योर एक्यूरेसी विल इंक्रीज। आप एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करते हो वो कम हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर चॉइस को ही चेक कर रहे हो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सिर्फ यही आंसर चॉइस में, सो दिस हैज टू बी आवर आंसर, है ना। तो चलो क्लियर है गाइस, रिवर्स इंजीनियरिंग आया सबको समझ में? एक बार यस बोल दो अगर आया समझ में। सब लोग एक बार यस बोल दो और एक बार वीडियो पे लाइक कर दो गाइस जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस गाइस। जल्दी से ये वाला कोशिश करो, क्विकली ट्राई दिस। सो यू हैव टू एंश्योर, अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग, देन सी इफ यू कैन एलिमिनेट मैक्सिमम आंसर चॉइसेस, है ना। एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस, ऐसा वैल्यू प्लग इन करो। और अगर आप रेगुलर मेथड से कर रहे हो तो वो तो है ही है, बट समर्थ ये कैसा क्वेश्चन है भाई? देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो टेस्ट डेट है कैट होगा आपका 28 नवंबर को। यस, कैट होगा आपका 28 नवंबर को, है ना। तो अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो 27 नवंबर तक अपन करेंगे ये बैच। अगर आपका आफ्टरनून स्लॉट है तो 28 मॉर्निंग में क्लास करेंगे, ओके। और अगर आपका इवनिंग स्लॉट है तो अपन 28 आफ्टरनून तक करेंगे क्लास, ठीक है, टेंशन मत लो। रोज करेंगे भाई, रोज करेंगे, टेंशन न लो। मजाक कर रहा था। माई एम इज टू फिनिश बाय बिगिनिंग ऑफ नवंबर इटसेल्फ। नवंबर के बिगिनिंग तक खत्म करने का सीन है ना। इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू माई प्लान, यू विल गेट वन एंटायर मंथ, you will get one entire month of self study, mock test, सब कुछ, okay। चलो, श्रेयसी and Neha are saying the answer for this is D। आ जाओ समर्थ, अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई, आ जाओ कर लेंगे। आपने सिटी चेन्नई तो सेलेक्ट करी थी ना। आई होप यू सेलेक्टेड द सिटी एज चेन्नई, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ भाई, गीता इज सेइंग डी, फिर उन्होंने इरेज कर दिया। प्राची डी बोल रहे हैं, साहिल डी बोल रहे हैं, प्रिंस डी बोल रहे हैं, समर्थ बोल रहे हैं। समर्थ शो ऑफ कर रहे हैं, समर्थ शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है। समर्थ ने एयर इंडिया के टेंडर में अपना नाम लिखवाया था। समर्थ एयर इंडिया पे टेंडर में अपना नाम लिखवा के आए थे कि रतन टाटा का अगर नहीं मिला तो अपन लेंगे, अपना नाम लिखो। चलो ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट लेट्स डू इट विथ आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a इज 4, b क्या है 3, c क्या है -27। हाँ, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। सो नाउ अपन अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, विच इज -b प्लस और माइनस √b² -4 टाइम्स ac बाय 2a। -b मतलब -3 प्लस और माइनस √-3 3 the whole square is 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा,
4 into 4 is 16 into 27. Yes, ठीक है. So 16 into 27 is 432. 432 plus 9 is how much? 441, है ना, by 2 times a which is 8. तो यहाँ पे क्या मिला? -3 प्लस और माइनस, ये अंडर रूट 441 विच इज 21. 441 का रूट क्या? 21, है ना. अब अपन क्या करेंगे? अब इसे स्प्लिट करेंगे. अल्फा इज -3 प्लस 21 by 8. बीटा इज -3 minus 21 by 8. तो अल्फा क्या हो गया? 21 minus 8 is 18, बराबर. Yes guys, 18 by 8 is 9 by 2. 9 by 4 which is 4.5 by 2, that is 2.25. तो अल्फा का एक वैल्यू is 2.25. बीटा क्या? -24 by 8 which is -3. तो अल्फा एंड बीटा के ये वैल्यूज सही है, which is option D, है ना. This is something that everybody could do. सब कर सकते, ये हो गया. What is the alternative? Reverse engineering. Yes. When you go for reverse engineering, जब आप reverse engineering जाते हो तब भी आपको क्या देखना पड़ेगा? When you look at the roots. Yes, when you look at the equation, जब आप equation को देखते हो तभी आपको पता चल जाना चाहिए, right? Let's say alpha, beta, इनके साइंस के बारे में बात करेंगे. साइंस मतलब विज्ञान वाला साइंस नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव वो वाला साइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है. अल्फा बीटा. लेट अल्फा का जो मॉड वैल्यू है, मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा, लेट इट बी ग्रेटर देन बीटा का मॉड वैल्यू, ठीक है. या फिर ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है. अभी ध्यान से सुनो मेरे को, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ओके. इफ C का वैल्यू नेगेटिव है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली गाइस. इफ C इज नेगेटिव, अगर आपका C जो है वो नेगेटिव है, दैट बेसिकली मीन्स वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा. आर यू गाइज एबल टू फील दिस? इफ C नेगेटिव है मतलब एक रूट पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा. Same way, if B is positive, अगर आपका B पॉजिटिव है, if B is positive, that basically means जो नेगेटिव रूट है, नेगेटिव रूट must be greater than पॉजिटिव रूट. मतलब अपने केस में क्या? बीटा should be greater than alpha. Are you guys able to feel this? Modulus of beta should be greater than modulus of alpha. Say yes if you understood this. ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो मैंने दो कंडीशंस लिखे, अगर C नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा. अगर B पॉजिटिव है मतलब जो नेगेटिव रूट का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव रूट का वैल्यू. हाँ बोलो जल्दी से एक बार, ये आया समझ में? तो देन आई विल टेल यू हाउ टू एलिमिनेट थ्रू द आंसर चॉइसेस. ओके, सो लुक एट दिस नाउ. C नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, राइट? सब जगह है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. दिस पार्ट इज डन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन? जो नेगेटिव रूट है, जो नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव रूट का मैग्नीट्यूड. नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड 1.5 है, पॉजिटिव का 4.5 है. इज दिस एक्सेप्टेबल? क्या ये आंसर चॉइस एक्सेप्टेबल है? नहीं. क्यों? क्योंकि माइनस के एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, राइट? इज ऑप्शन बी एक्सेप्टेड? यस, ऑप्शन बी एक्सेप्टेड है. क्यों? माइनस के साथ क्या है? 4.5. 4.5 इज ग्रेटर देन 1.5, है ना? 4.5 शुड बी ग्रेटर देन 1.5 विच इज ट्रू. तो बी रहेगा. सी, व्हाट अबाउट सी गाइस? सी को रखना है कि एलिमिनेट करना है? ऑप्शन सी को रखना है कि एलिमिनेट करना है? डू यू वांट टू कीप ऑप्शन सी और एलिमिनेट ऑप्शन सी? एलिमिनेट. क्यों? वापस 2.25 इज लेस देन 3.
और ऑप्शन डी। तो दो ऑप्शन चॉइस रह गए, बी एंड डी, है ना। मतलब क्या, आर आंसर शुड बी 1.5 और -4.5, otherwise it should be what, 2.25 और -3। एग्रीड। अब इन चार वैल्यूज में से, इन 4 वैल्यूज में से 1 2 3 4 वैल्यूज है, कोई एक वैल्यू प्लग इन करके चेक कर लो जो सेटिस्फाई किया वो अपना आंसर। बुझे? कोई एक वैल्यू जो है वो प्लग इन कर लो जो सेटिस्फाई किया वो अपना आंसर, राइट। इन चार में से कौन सा इजी नंबर है? -3 थोड़ा सा इजी नंबर। मैं इसलिए -3 नहीं ले रहा हूं क्योंकि आंसर वो है, मैं इसलिए आंसर ले रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए -3 ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह पे -3 को सब्सटीट्यूट करो और चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 4 into -3 whole square which is 9, 4 into 9 is 36, -3 into 3 is -9, -27. We only have to check if this is equal to 0 or not. Is it equal to 0? Yes it is. 36 minus 36 equal to 0. Satisfies? Yes. -3 satisfies? Yes. That means ये एक ही आंसर चॉइस है, ये पूरा सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये एलिमिनेट, खत्म। गॉट इट? बिना कुछ सॉल्व किए जस्ट एनालाइजिंग द रूट्स, जस्ट बाय एनालाइजिंग द रूट्स वी कुड फाइंड आउट द राइट आंसर। यस, एनालाइज करो प्लस रिवर्स इंजीनियरिंग करो। रिवर्स इंजीनियरिंग जितना कम वैल्यूज आप ट्राई करोगे, द लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज यू ट्राई, द मोर इफेक्टिव रिवर्स इंजीनियरिंग विल बी, है ना। डन ना? आया समझ में सबको? सब एक बार यस भेज दो अभी। एवरीबडी सेंड यस वंस एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ब्यूटिफुल। अब तक मैंने जो भी बोला अब तक मैंने जो भी बोला सब पानी में। क्यों? ये वाला ट्राई करो। अब तक अपन ने जो भी बात करी सब कुछ पानी में, क्योंकि यहां पे क्या है, इमेजिनरी रूट्स है या इरैशनल रूट्स है। These two roots are irrational. These two roots are imaginary. ऐसे केसेस में सेफ प्ले क्या रहेगा? सेफ प्ले विल बी इफ यू गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा कुछ मगजमारी नहीं करना है। आई अगर आए तो आई को आप प्लग इन करके मत करना। अ लॉट ऑफ यू मेक मिस्टेक व्हेन यू प्लग इन आई को प्लग करते वक्त आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो अगर रियल और रैशनल रूट्स है, इफ इट्स रियल एंड रैशनल, रिवर्स इंजीनियरिंग जिंदाबाद। अगर इरैशनल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है, प्लीज प्ले इट सेफ। अमन इज सेइंग ऑप्शन सी। अमन का आंसर है सी। साहिल का आंसर है सी। दिस इज रियल इमेजिनरी, रियल इरैशनल एंड इमेजिनरी। मयूर भी सी बोल रहे हैं। समर्थ बस यार जाने देते अभी जाने देते उस बात को, ठीक है, बहुत हो गया। आपको रॉकेट में जाना है, जाओ। आप ब्लू ऑरिजिन में जाओ, स्पेस एक्स में जाओ, कोई इश्यू नहीं है। आपको जैसे जाना है सेंटर जाओ, ठीक है। वही तो अमन। हाँ बट जाओ, जाना तो पड़ेगा, सेंटर तो जाना पड़ेगा भाई।
Shirley and Samarth are saying C. Okay, so best way, जब अपन ने आंसर चॉइसेस को देख लिया कि दो आंसर चॉइस रियल है और दो इमेजिनरी है, पहले एलिमिनेशन तो करेंगे। एलिमिनेशन करेंगे कैसे? डी को रख के। अगर डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो आंसर चॉइस ए या बी होगा करेक्ट। अगर डी आपका नेगेटिव हुआ तो आंसर चॉइस सी या डी सही होगा, है ना। तो डी का वैल्यू चेक करेंगे। डी इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 100 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 29, 4 टाइम्स 29 इज 116। तो अपना जो डी का वैल्यू है वो क्या है? -16, which is less than 0. If it is less than 0, then what does it mean? कि ऑप्शन सी या डी सही होगा, ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट कर। आ रहा है समझ में अपन ने क्या किया यहां पे? We are not going for reverse engineering, but we are using this so that we don't make a mistake when we solve further, है ना। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अल्फा और बीटा क्या होगा? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। माइनस बी, व्हाट इज माइनस बी? -10 प्लस और माइनस अंडर रूट -4 बाई 2। ये कितना हो गया? -10 प्लस और माइनस अंडर रूट -4। स्क्वायर रूट ऑफ -4 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 4, करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ -1 i, square root of 4 is 2, so this is 2i. So 10 -10 plus or minus 2i by 2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? -5 प्लस और माइनस i बराबर, सॉरी दिस इज -16 ना, माफी ये -16 है। मैं फ्लो में आई टुक इट एज -4i. So this is 4i, this will give us 2 times i. मतलब क्या? Your alpha should be -5 plus 2i, your beta should be -5 minus 2i, which is what? Option C. It is not D, so option C. ठीक है? Understood? I hope this is clear, है ना। चलो चलेंगे अगला। Next question shall we? Beautiful. Okay, before we move on to the next question, a lot of new batches are starting guys. ये 6th को start हो गया था, ये 9th को and 9th को 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। कैट 22 के लिए दिस इज इन हिंदी। जिनको लैंग्वेज बैरियर है, जिनको इंग्लिश इतना कंफर्टेबल नहीं है, जिनको प्योर हिंदी में चाहिए, आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे एजुकेटर्स आपको सब कुछ हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। फनी चीज ये है कि वीए और आरसी भी आपको हिंदी में समझाएंगे। यस, सेम वे दिस इज अ बैच फॉर सी मैट। जो लोग सी मैट दे रहे हैं, 2022 में जो सी मैट दे रहे हैं उनके लिए है ये, है ना। और ये जो लोग 2021 दे रहे हैं, मतलब आप और मेरे जैसे लोग, है ना, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो किसका नाम यूज करना है? सुराना लाइव। चलो अब चलेंगे अगला मेथड विच इज फैक्टराइजेशन। यस, फैक्टराइजेशन का क्या सीन है? देखो, अगर आपका जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। सबसे पहले डिवाइड बाई a, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाई a। तो पूरा इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा? a टाइम्स x² बाई a इज x² प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज 0। यस, फर्दर साइन को लेके ऑल्टरनेटिव साइंस, मतलब भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव को ऑल्टरनेटिव करना है। मतलब क्या?
कभी भी इसको पॉजिटिव रखना है, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर वापस पॉजिटिव. So now our equation becomes what? X square minus of minus b by a times x plus c by a, x बाहर ले लो, is equal to 0. Yes. Now please listen to this carefully. ध्यान से सुनना. ये जो वैल्यू है c by a का जो वैल्यू है c by a is nothing but the product of the roots alpha into beta. Yes, alpha into beta is c by a. और ये जो माइनस b by a है, ये जो माइनस b by a है, ये सम ऑफ द रूट्स है. समझ रहे? ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये सम है. से यस अगर ये आया समझ में आप लोगों को, एक बार जल्दी से यस बोलो गाइस, है ना. तो अपन अभी बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन लेंगे, लेट्स से कोई एक रैंडम इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना. ये अपना इक्वेशन है. यस, listen to this carefully. 2x square minus 6x plus 4 equal to 0, ये इक्वेशन है. यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड बाई 2, पूरा इक्वेशन डिवाइड बाई 2 कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब हमें क्या मिला कि ये जो 2 है, ये 2 जो है दिस हैज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये जो माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब क्या, 3 हो गया. माइनस ऑफ माइनस 3 इज 3 शुड बी द सम ऑफ द रूट्स. या अब इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. नाउ वी विल फैक्टराइज इट. हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, वी नीड 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट शुड बी 2, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और जिनको ऐड करने पे 3 आना चाहिए. ऐसे क्या नंबर्स है गाइस, ऐसे दो कौन से नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा और ऐड करने पे 3 आएगा, जल्दी से बता. वन एंड 2, है ना. 1 and 2, वेरी गुड, सुपर नगमा, बहुत बढ़िया. 1 into 2 कितना, 1 into 2 2 है, 1 plus 2 क्या है, 3 है. तो हमें यहां पे क्या मिल गया, डायरेक्टली वी गॉट व्हाट, द वैल्यूज ऑफ द रूट्स. अल्फा क्या है आपका 1, बीटा क्या है आपका 2. हाँ बोल लो अगर ये आ गया समझ में. -2 और -1 ऐड करने पे -3 आ रहा ना नरसिम्हा. नरसिम्हा -2 और -1 को ऐड करने पे -3 आ रहा है. हमें -3 नहीं चाहिए, +3 चाहिए. ये जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, समझ रहे, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए मतलब b अगर -3 है तो सम +3 होगा, अगर b +3 है तो सम -3 होगा, उल्टा, है ना. साइन इनवर्स हो जाएगा. यस, यही यहां पे समझाया मैंने, द सेम प्रोसेस मैंने यहां पे समझाया बस, और कुछ नहीं, है ना. सेम प्रोसेस यहां पे समझाया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अल्फा और बीटा मैंने x1 और x2 लिया, बट सेम ही चीज है. ओके. तो आपका जो इक्वेशन है, योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज x स्क्वायर minus alpha plus beta times x plus alpha into beta equal to 0. another form, ये इसका फॉर्म है, that's it. ठीक है ना. करेंगे क्वेश्चंस अभी. चलो ट्राई दिस, यूज ओनली फैक्टराइजेशन. हाँ, फैक्टराइजेशन यूज करना, फॉर्मूला मत यूज करना. use factorization and do it.
तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि बिना इक्वेशन को सॉल्व किए आंसर कैसे निकालें, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए आंसर कैसे निकालें, बिना इसका माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये करे बिना कैसे इनके रूट्स निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। करिएगा, जल्दी से ट्राई करिए। प्रिंस सेज बी, प्रिंस बोल रहे हैं आंसर बी है, ओके। अदर्स, नेहा बी बोल रहे हैं, गीता इज सेइंग डी, तो दो आंसर्स है बी डी। शर्ली डी बोल रहे हैं, प्रिंस बी बोल रहे हैं, साहिल ऑप्शन ई बोल रहे हैं, साहिल बोल रहे 7 and 5। डॉक्टर डॉलर जाक जी आपका नाम है। Was your name influenced by Elon Musk's daughter's name? क्या आपके पेरेंट्स ने भी सोचा होगा कि रे भाई इलॉन ऐसा गंदा नाम रख सकता है तो अपन भी रखेंगे। ओके, नगमा एंड शिमा आर ऑल्सो सेइंग बी। चलो ठीक है, फटाफट से देखेंगे यहाँ पे क्या फैक्टराइजेशन करना है। आपका a का वैल्यू 1 है, a is 1 है ना, तो sum of the roots plus alpha plus beta, sum of the roots must be what? minus of minus 12/1 है ना, minus of minus 12/1 है ना, minus of b by a, so b यहाँ पे क्या है minus 12, so minus of minus 12/1 which is plus 12, so sum of the roots must be 12, दोनों को ऐड करने पे 12 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 35 आना चाहिए। ऐसे आंसर चॉइस ढूंढो। -7 + -5 कितना, -12 ना, नहीं चाहिए। 7 + 5 12, 7 × 5 35, यही है अपना आंसर। आपको दूसरे आंसर चॉइस देखने की जरूरत ही नहीं है, बट ये कंफर्म करने के लिए -7 + 5 is -2 and product is -35, +7 - 5 is 2, product is -35, तो C D कैंसल, आंसर अपना B। आया समझ में? Did you guys get it? Beautiful, very good। तो यहां पे सेम लॉजिक जो अपन ने प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया था, वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी डिड, अल्फा बीटा इफ C इज पॉजिटिव, अगर आपका C पॉजिटिव है, इफ C इज पॉजिटिव देन देर आर टू केसेस, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अल्फा बीटा बोथ पॉजिटिव, और बोथ विल बी नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे। यस, इन सेकेंड केस इफ B इज नेगेटिव, अगर B आपका नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हो गया, सम आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सम शुड बी पॉजिटिव। यस, दैट मीन्स इट हैज टू बी प्लस एंड प्लस, तो दोनों जो रूट्स है वो प्लस होने चाहिए, अल्फा शुड बी पॉजिटिव, बीटा शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। ये कहां पे है दोनों पॉजिटिव, सिर्फ B में, A में नहीं, C में नहीं, D में नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड दी अदर कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, C पॉजिटिव B नेगेटिव क्या होगा? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन, प्लीज फैक्टराइज एंड डू इट। ठीक है, प्लीज फैक्टराइज करो और फिर करना। चलिए कोशिश करिए जल्दी से।
हो रहा है? बताओ क्या वैल्यूज होंगे x के यहां पे? x की वैल्यू आपके जिंदगी में 0 होनी चाहिए। इन रियल लाइफ x की वैल्यू आपके लाइफ में 0 होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, x को कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए जिंदगी में। फिर आप वो IAS IPS ऑफिसर बन जाएंगे, आप फिर IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बन जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट साहिल। ये वर्ड्स ऑफ विजडम नहीं है, ये लर्निंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस है। नहीं महेश, उस टाइम बहा था, अब नहीं बह रहा हूं। उस टाइम पिघल गया था, बह गया था, अब एकदम सख्त। ओके, अमन समर्थ आर सेइंग डी। अमन और समर्थ डी बोल रहे हैं। प्रिंस और नगमा सी बोल रहे हैं। गीता भी डी बोल रहे हैं। हाँ समर्थ, एक्सपीरियंस तो हर कोई है ही है, कहीं ना कहीं तो टूटा है ही है। चलो ठीक है, नगमा ने चेंज करके डी बोल दिया। नगमा इज नाउ सेइंग डी। ओके, लिसन टू दिस केयरफुली। ठीक है, लिसन टू दिस केयरफुली। पहले मैं आपको सम एंड प्रोडक्ट से समझाऊंगा। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। सम प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप क्या करोगे? a से डिवाइड करोगे, है ना? पूरा इक्वेशन a से डिवाइड करो, मतलब क्या? 4 से डिवाइड करो सब कुछ। 4x square by 4 is x square plus 4x by 4 is x minus 3 by 4. This is equal to 0, है ना? Yes, तो अब यहां पे हमें क्या पता चला कि सम ऑफ द रूट्स, या पहले प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मस्ट बी -3/4, और सम क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ -1, है ना? -1। बस ये दो चीज आप चेक कर लो, आंसर चॉइसेस में है नहीं है, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। यस, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -3/4 आना चाहिए, 2 और -6 मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है, नहीं चाहिए, रखो अपने पास ना, सॉरी। 0.5 और -1.5 मतलब क्या? 1/2 इंटू -3/2, दिस इज -3/4, लेट्स कीप इट। दिस इज +3/4, एलिमिनेट। दिस इज ऑल्सो +3/4, एलिमिनेट। सिर्फ एक ही सही आंसर है, जो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये आया समझ में? सम एंड प्रोडक्ट वाला आया समझ में? हाँ प्रिंस, अब मैं आपको समझाऊंगा। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू फैक्टराइज दिस। ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ओके, हाउ टू फैक्टराइज इट। सबसे पहले जो a है, जो आपका a है, दिस a मल्टीप्लाई इट विद दिस c। फैक्टराइज करते वक्त इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, अगर आपका a 1 से इक्वल नहीं है तो a को पहले यहां पे मल्टीप्लाई करो। प्राची, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 4। डिवाइड पूरा इक्वेशन बाय 4 किया था मैंने। ठीक है, ओके, गेटिंग बैक टू दिस। 4 इंटू -3 क्या? -12। 4 इंटू -3 कितना? -12। इसको फैक्टराइज करने पे सम क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आर सम शुड बी 4। आर यू गाइस एबल टू गेट दिस? सम आपका 4 आना चाहिए, तो क्या नंबर होगा? 6 इंटू 2, -12 चाहिए। -12 प्रोडक्ट, मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए? -6 + 2 इज -4। सम अपना क्या होना चाहिए? -4। प्लस है मतलब -4। यस, तो 4 टाइम्स x का वैल्यू या 4 टाइम्स अल्फा का वैल्यू क्या है? -6। आर यू गेटिंग दिस?
4 टाइम्स बीटा का वैल्यू क्या है 2. से यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. क्योंकि अपन ने 4 मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि अपन ने 4 मल्टीप्लाई किया था, इस 4 को यहां पे मल्टीप्लाई किया था. यस, सो 4 टाइम्स अल्फा इज -6, 4 टाइम्स बीटा इज 2. अब इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा विल बिकम -6/4 which is -3/2. 4 times beta is 2, so beta is 1/2. Say yes if you understood this. हाँ बोल लो भाई अगर आ गया समझ में. जिन्होंने पूछा अगर टीटा हुआ तो, है ना प्रिंस, आया समझ में. एवरीबडी से yes once if you got it. तो जो -6 और 2 है, -6 और 2 है वो कब आता है, 4 टाइम्स द रूट इज -6, 4 टाइम्स द रूट इज 2. हमें 4 टाइम्स क्यों चाहिए, हमें तो रूट का वैल्यू चाहिए ना, इसलिए डिवाइड बाय 4. ठीक है, तो अपना प्रोसेस क्या है, c को मल्टीप्लाई करो a से, a इंटू सी को आप स्प्लिट करोगे, इन दोनों का जो सम होगा, दिस इज 4 टाइम्स अल्फा, यहां पे a टाइम्स अल्फा, दिस इज a टाइम्स बीटा. इन दोनों का जो सम है a टाइम्स अल्फा प्लस a टाइम्स बीटा शुड बी इक्वल टू योर -b. समझ रहे, ऐसे आप एलिगेट करोगे, I mean, ऐसे आप फैक्टराइज करोगे. ठीक है, a इंटू सी का प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकालो फिर ऐड करो. ओके, वरना आपका -b वाला फॉर्मूला है ही है ना, आपका जो फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस वो वाला तो है ही है, ऑल्टरनेटिव. चलिए ये वाला ट्राई करिए गाइस, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, क्विकली सॉल्व दिस. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन. दो बजे करेंगे ना लंच, राउंड टाइम पे करेंगे लंच. ये 1:45 को कौन लंच करता है, 1:45 को ऐसे ऑकवर्ड टाइम पे लंच करने वाले को सोशियोपैथ बोलते हैं जिंदगी में. अपन एकदम ओसीडी से रहता है. ठीक है, एकदम करेक्ट 2 o'clock अपन लंच करेंगे. ठीक है समर्थ, ये 1:45 को, 2:10 को, 12:20 को ऐसे नहीं करेंगे लंच, एकदम प्रिसाइस 2 o'clock. करिए जल्दी से सॉल्व इसको. प्रिंस से सी, प्रिंस का आंसर है सी. अदर्स, अरे ओ क्लॉक में मजा है, ओ क्लॉक में मजा है. साहिल सेज डी, साहिल बोल रहे कि आंसर डी है सर. नगमा इज ऑल्सो सेइंग डी, प्रिंस इज सेइंग डी. बहुत बढ़िया. अदर्स गाइस, आसान सा क्वेश्चन है, जो कुछ नहीं चल रहा, जो कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना. उठाओ आंसर चॉइस को, डाल दो आंसर इसमें. यस, चलो. प्रिंस ऑल्सो हैज चेंज द आंसर, समर्थ इज ऑल्सो सेइंग डी. चलो बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर. ब्यूटीफुल. श्रुति एक बार चेक कर लो प्लीज, चेक वंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो इक्वेशन है, आर इक्वेशन, we have to write it in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, है ना. तो इस फॉर्म में लिखेंगे पहले इस इक्वेशन को. क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ -2 है, तो -2 x स्क्वायर
x के साथ -9 है, -9x + 5 = 0। तो इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड एवरीथिंग, डिवाइड करना है ना, सम और प्रोडक्ट से कर रहे हैं तो डिवाइड बाय -2, पूरा इसको -2 से डिवाइड कर दो तो -2x² by -2 is x², -9x by -2 is +9/2x, +5 - 2 is -5/2 = 0। ठीक है, ये क्या, x² + 4.5x - 2.5 is = 0। तो ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और हमें जो इक्वेशन दिया है क्या वो सेम है? ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन दैट इज गिवन टू अस, इज इट द सेम और डिफरेंट गाइस? ये दोनों इक्वेशन सेम है या डिफरेंट है? आर दे इक्वल और नॉट इक्वल? हाँ या ना बोलो जल्दी से। सेम है? यस, algebraically they are same, algebraically ये दोनों सेम है, बट इनके जो ग्राफ होंगे, ग्राफ अलग अलग होंगे, डिफरेंट। समझ रहे हो? इनका जो ग्राफ होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ऊपर वाला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे खुलेगा, ये जो दूसरा सेकेंड वाला अपन ने बनाया वो ऐसे खुलेगा। ग्राफ अलग अलग होंगे, ग्राफ्स वुड बी डिफरेंट, बट या ठीक है डन। अभी सॉल्व करेंगे इसको, अब इजी हो गया। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा शुड बी -2.5, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा शुड बी -4.5। आंसर चॉइस में ढूंढो, लगा लो, खत्म। प्रोडक्ट इज -10, प्रोडक्ट इज -10 नहीं चाहिए, प्रोडक्ट इज -2.5, -2.5 चाहिए, सम शुड बी -4.5, -4.5 सम का है, यहां पे सम क्या हो गया, 5 - 0.5 इज +4.5, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्यों? यहां पे सम इज -4.5। आया समझ में? हाँ बोलो एक बार जो अगर आया समझ में। क्विकली से यस इफ यू अंडरस्टूड दिस, ताकि अपन अगला क्वेश्चन करें। क्विकली से यस, ब्यूटिफुल। अगर आपने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं करा है, इफ यू हैवंट हिट लाइक ऑन द वीडियो येट, जल्दी से कर लो गाइस। ये वाला ट्राई करो क्विकली। हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रे टू यू एज वेल समर्थ। बाकी लोगों को भी भाई, जो लोग मनाते हैं हैप्पी नवरात्रि, जो लोग नहीं मनाते हैं एंजॉय करो, हॉलीडे मस्त मजे करो। और जो एकदम सीरियसली मनाते हैं, मतलब व्रत करके, है ना, व्रत वगैरह करके जो करते हैं, उनको तो भाई अलग ही लेवल। और जो नवरात्रि सिर्फ डांडिया खेलने के लिए, नवरात्रि में इन्वॉल्व सिर्फ डांडिया खेलने के लिए होते हैं, उनके लिए अलग ही जगह है। पास, कैट में पास रहा, वाह महेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना कॉन्फिडेंस बस चाहिए जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सब कुछ ले लो मेरे से गाइस, सब कुछ ले लो, महेश जितना कॉन्फिडेंस दिला दो बस। पास, कैट में पास, कुछ नहीं। Aman says none of these. समर्थ फर्स्ट डे और लास्ट डे फास्ट करते हैं, बाकी के 7 दिन स्लो होते हो क्या? सॉरी भूख लगी है, भूख अभी सर पे चढ़ रहा है, गंदे गंदे जोक्स आ रहे हैं।
प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। अभी जो मेरे जोक्स आ रहे हैं वो मेरे दिल से या दिमाग से नहीं आ रहे, वो मेरे पेट से आ रहे हैं। सुपर, साहिल, नेहा, प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस, साहिल, सुपर, नरसिम्हा बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर, है ना, नन ऑफ दीज। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट्स क्विकली लुक एट दिस। इसको अपन कैसे लिखेंगे, 27x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 3 इक्वल टू 0। यस, व्हाट आर वी गेटिंग, अपना जो c है वो पॉजिटिव है। इफ c इज पॉजिटिव, अल्फा और बीटा या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, बराबर। एंड वी आर गेटिंग b एज नेगेटिव, सॉरी b अपना क्या है, नेगेटिव। If b is negative, that basically means both of these values should either be positive और जो बड़ा वाला वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, both being positive। बस ये बस है अपने लिए, है ना गाइस, ये है। इसको रख के अपन ने ये एलिमिनेट कर लिया। नाउ टू चेक दिस, 1 को सब्स्टिट्यूट करो और चेक कर लो। जस्ट सब्स्टिट्यूट 1 इनटू दिस एंड चेक। इफ x इज इक्वल टू 1, 27 minus 18 plus 3, is it equal to 0? नहीं, है ना। 30 minus 18 is 12, not equal to 0. That means this is out. Ultimately, what is our answer? Option D, खत्म। Yes, या फिर सम और प्रोडक्ट करो, है ना, सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले पूरा इक्वेशन को डिवाइड बाय 27 कर लो। x स्क्वायर minus 18 by 27 is 2 by 3 plus 3 by 27 is 1 by 9 equal to 0. Product of the roots alpha into beta should be 1 by 9. Not 1 by 9, not 1 by 9, not 1 by 9. आंसर क्या, none of these। ठीक है ना, क्लियर है गाइस सबको? Yes, with this we will wrap things up। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन, this is especially for people who are preparing for only CAT 2021। Yes, if you are preparing only for CAT 2021, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 7,000 रुपीज। मेरा कोड यूज करोगे सुराना लाइव, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 6,300 रुपीज पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, व्हाट वुड यू गेट विद दिस, टॉप एजुकेटर्स के बैचेस जहां पे आपको रिवीजन होगा, क्रैश कोर्सेस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे। रिवीजन, क्रैश कोर्सेस, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस होंगे, राइट। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट and 9 sectional test। yes, 10 full length, 9 sectional मिलेगा आपको। हर मॉक टेस्ट का लाइव वीडियो एनालिसिस मिलेगा और मोर देन 100 आवर्स का आपको प्रैक्टिस मिलेगा। yes, ये आपको ऑफर अभी कैट 2021 के लिए वैलिड है। यू कैन टेक दिस अप, यूज माई कोड सुराना लाइफ, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। या अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। इफ यू हैवेंट ज्वाइन दिस ग्रुप येट, अगर आपने अभी तक ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज दैट, ज्वाइन द ग्रुप। एंड टुडे एट 6 PM 7 PM, आज 6 बजे 7 बजे 2 क्लासेस है, 6 PM 7 PM। This is on the app, this is a free session, you don't have to pay for this session। in fact 2 sessions है, 2 सेशन है ना। तो इनका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस। मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मजा आएगा, आ जाइयो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अपना 3 PM का क्लास होगा आज 3 PM पे। We are doing harmonic progression, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean के relation। okay,
please don't forget to join this if you really want to excel at sequence and series. Yes. इसके अलावा और क्या बोलना है मेरे को? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो. इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, you might want to take iconic subscription. प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. along with that you will get one-on-one sessions with your mentors. उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. You can ask for any kind of guidance with respect to which B school you want to apply for, which other management tests you should give, which programs you should apply for, आपके प्रोफाइल कैसे होने चाहिए, आपके स्कोर्स कैसे होने चाहिए, what should you focus on, all of that, right? 6 months, 12 months, 24 months, depending upon when you are planning on giving your CAT and OMETs, you can take this subscription. Use my code Surana Live for 10% discount. ठीक है? ओके. अच्छा, एक ऑफर भी चल रहा है अभी. ऑफर भी एक चल रहा है. लुक एट दिस गाइस. अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीने का फ्री मिलेगा. 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा. यस. यूज माई कोड सुराना लाइव. आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन सारे सब्सक्रिप्शंस पे. ठीक है. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 10th अक्टूबर. 10 अक्टूबर के बाद ये ऑफर चला जाएगा. तो जिनको लेना है अभी ले लो, वेट मत करो, है ना. आखिरी तक वेट करते हो, फिर आप बोलते हो कि सर चला गया, सर अब मैं क्या करूं. ठीक है. चलो अभी क्या. Thank you so much, Neha, Shruti, Prince. Thank you very much, everyone. See you at 6, Nashima. See you at 3 also if you can come. That will be great. हाँ मन, क्लास खत्म. आज प्रैक्टिस है प्रिंस 6 बजे 7 बजे. थैंक यू so much. पूछो साहिल. थैंक यू सो मच महेश. थैंक यू प्राची. पूछो साहिल. नहीं साहिल, नहीं. You do you remember this quote from Endgame? Do you remember this quote from Endgame? Yes. क्या आप लोगों को वो कोट याद है? Not from Endgame, from Infinity War. याद है क्या? क्या है? I guide people who seek for the treasure, ऐसा कुछ. वही वाला सीन है बस, और कुछ नहीं साहिल, है ना. क्या है, रुको बराबर से देखता हूं. वो रेड स्कल का. I seek, I guide others to a treasure that I cannot possess. वही वाला सीन है बस. ठीक है. हाँ चलो ठीक है guys. Thank you so much. I'll see you all at 3, then at 6, then at 7, and then I'll see you tomorrow, then I'll see you the day after that also. ठीक है. Bye guys. Have a great lunch. Thank you so much. Keep learning. Let's crack it.